Very good morning to one and all. Today we are going to revise chapter Our Clothes. We use different kinds of fabric for making clothes for different seasons and occasion. Different seasons और occasion के लिए हम different type का fabric जो है लेते हैं. In summer season we wear cotton clothes to keep ourselves cool, while in winter season we wear warm clothes, woolen clothes that keeps us warm. Summers में हम पहनते हैं light colored cotton clothes बिकॉज कॉटन क्लोथ्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, तो वो हमें ठंडा रखते हैं, हमारे पसीने को स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वाइल विंटर सीजन में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जो कि हमें गर्म रखते हैं. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक एंड फाइबर इज ऑब्टेन्ड एंड फैब्रिक इज ऑब्टेन्ड बाय वीविंग इट्स फाइबर. क्लोथ्स जो है वो किससे मिलते हैं, हमें किससे बनते हैं, फैब्रिक से. और फैब्रिक जो है किससे मिलता है, हमें फाइबर्स को जब हम वीव करते हैं. But from where we obtain fibers? We get these fibers either from plants or animals. ये fibers जो है हमें या तो plant से मिलते हैं या animals से मिलते हैं. These fibers are called natural fibers, and the fibers which are made by human being in factories with the help of chemical are called man-made fibers. Man-made fibers are also called artificial fibers or synthetic fibers. Now cotton, wool, silk, these we obtain from plants and animals. These fibers are called natural fibers, and the fibers which are made by human being in factories are called man-made fibers like nylon, rayon, polyester, etc. Fine. Now we will learn about the processes which are involved in making fiber to fabric. फाइबर से फैब्रिक तक बनाने के लिए जो processes involve होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. First one is spinning, weaving, and then finishing of the fiber. These three steps are involved in making fiber to fabric. Now natural fibers होते क्या हैं, they are hair like material obtained from animal or some plant. किसी plant या फिर किसी animal से जो thread like material मिलता है उसे हम natural fiber कहते हैं. Now then they have to undergo many step by step processes to become a strong and durable long fiber. फिर बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कि वो जो फाइबर्स होते हैं उन्हें लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाया जाता है और फिर उनको फैब्रिक में वीव किया जाता है. नाउ फर्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग. स्पिनिंग क्या होता है, इट इज़ मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम रॉ फाइबर. रॉ फाइबर से जब यार्न बनता है उस प्रोसेस को स्पिनिंग किया कहते हैं. एंड अर्लियर इट वॉज डन ऑन चरखा से किया जाता था. During spinning, raw fibers are twisted into thread. Raw fibers को thread में बनाया जाता है, twist किया जाता है. Later on, spinning jenny was used for the purpose. Earlier, it was charkha was used. And now it is done in high-tech machines or textile factories, etc. Now weaving क्या होता है, process of arranging two sets of yarn together to make a fabric. दो यार्न के टू सेट से जब हम एक फैब्रिक बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम और पावर लूम, इट इज़ कॉल्ड वीविंग. नाउ finishing of the fiber involves three processes, three steps actually: dyeing, printing and special treatment to fabric. dye करना means color करना किसी भी fabric को. Dyeing is a process of coloring the fabric. For this, fabric is put into the large vessel of hot water of different colors. Then fabric is stirred for some time. थोड़ी देर गरम पानी में रखा जाता है, colored पानी में, water में. And then it is removed from the vessel and it is dried. Now another one is printing. Printing में क्या किया जाता है, it involves forming of various designs and patterns on the colored fabric. Now special treatment is given to finished fabric to make it fluffy, waterproof or stop it from shrinking and wrinkling. श्रिंकिंग वगैरह से बचाने के लिए एक फिनिशिंग की जाती है फैब्रिक की. इससे क्या होता है, फैब्रिक जो है स्मूथ और शाइनी लुक मिल जाता है उसको. एंड देन नाउ द फैब्रिक इज़ रेडी फॉर स्टिचिंग द क्लॉथ. उसको क्लॉथ में स्टिच करने के लिए वो रेडी हो जाता है. नाउ हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ द क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हैं हम, कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं. वी मस्ट फर्स्ट प्रोसेस इज वॉशिंग. We must wash our clothes regularly with clean water using detergent powder etc. Detergent powder यूज़ करना चाहिए और हमें वॉश करने चाहिए क्लोथ्स रेगुलरली.
वी मस्ट टेक केयर ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट इज़ वॉश आउट कम्प्लीटली, उसमें से सारा साबुन जो है, डिटर्जेंट पाउडर जो है वो वापस उसमें से पूरा का पूरा निकल जाए. वाइट क्लोथ शुड बी सोक्ड इन इंडिगो पाउडर, नील में उनको रखना चाहिए. एंड इट शुड बी ड्राइड इन सन. सन ड्राइंग से क्या होता है, क्लोथ्स जो है जर्म फ्री हो जाते हैं, उनके जर्म्स जो है निकल जाते हैं. अनदर प्रोसेस इज ड्राई क्लीनिंग. कुछ गारमेंट जैसे कि वुलन और सिल्क गारमेंट्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, सो दे कैन नॉट बी वॉश और क्लीन्ड एट होम, उन्हें हम घर पर नहीं धो सकते. सो दीज क्लोथ्स हैव टू बी गिवन फॉर टू ड्राई क्लीनर फॉर ड्राई क्लीनिंग. इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस स्पेशल केमिकल्स एंड मशीन्स आर यूज टू क्लीन एंड आयरन द डेलिकेट क्लोथ्स. डेलिकेट क्लोथ्स को क्लीन करना और आयरन करने में कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज़ होते हैं और मशीन्स यूज़ होती हैं. Another one is ironing. Ironing means press करना. It make after they have dried. Ironing clothes after they have dried. सूखने के बाद उनको हम आयरन करते हैं. Makes them look smart and well kept. स्मार्ट लगते हैं और वेल केप्ट भी लगते हैं, अच्छे से रखे भी जाते हैं. अलमीरा भी क्लीन लगती है. नाउ लास्ट प्रोसेस इज स्टोरेज. उनको स्टोर कैसे करना चाहिए. हम लोग विंटर वुलन क्लोथ्स को स्टोर कर देते हैं जब समर्स आती हैं. जब विंटर्स आती हैं तो हम समर क्लोथ्स को स्टोर कर देते हैं अपनी अलमीराज में या ट्रंक्स में रख देते हैं. तो हाउ शुड वी स्टोर द क्लोथ्स. केयर शुड बी टेकन वाइल स्टोरिंग क्लोथ्स. केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. दिस शुड बी केप्ट इन सेफ, क्लीन एंड ड्राई प्लेस. हमें क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, लाइक कबर्ड और ट्रंक. दीज प्लेसेस शुड ऑल्सो बी सेफ फ्रॉम पेस्ट. वहाँ पर कोई कीड़े भी नहीं होने चाहिए, पेस्ट से भी सेफ होना चाहिए. इंसेक्ट्स एंड माइट्स मोस्टली अटैक वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स. सो वी शुड कीप ड्राइड नीम लीव्स, बोरिक एसिड पाउडर और नैप्थलीन बॉल्स. These are kept inside the clothes when they are stored. जब हम स्टोर करने लगते हैं नैप्थलीन बॉल्स या नीम लीव्स, ड्राइड नीम लीव्स, इनको रखा जाता है या बोरिक एसिड पाउडर, ताकि जो इंसेक्ट्स और माइट्स हैं वो क्लोथ्स से को अटैक करने ना करें और वो उनसे दूर रहें. थैंक यू एवरीवन.